الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے درس کا عنوان ہم لوگوں کا نیک عمل صالح تھا، جس کے متعلق کچھ باتیں کہی گئی اور انشاءاللہ اسی کو آج مکمل کیا جائے گا۔ تو پچھلے درس میں ہم لوگ جو ڈسکس کیے تھے اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل صالح کیسے ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ عمل صالح ہونے کے لیے، عمل نیک ہونے کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا کہ وہ عمل شریعت کے حکم کے مطابق ہو، دوسرا جو عمل کیا جائے وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور تیسرا جو بھی عمل کیا جائے وہ ایمان کے حالت میں کیا جائے۔ یہ 3 شرائط اگر کسی عمل پر جمع ہو جائے تو وہ عمل صالح ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتا ہے۔ تو اسی کا پہلا شرط کہ جو شریعت کے مطابقت رکھے، اس کے متعلق ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے لیے 6 چیزوں میں مطابقت دیکھنا ہے۔ پہلا ہے کہ اس کا حکم شریعت کے اندر میں موجود ہو، دوسرا اس کا نوعیت جو ہے، اس کا ٹائپ بھی جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، اور تیسرا اس کا مقدار شریعت کے مطابق ہو، اور چوتھا عمل کی کیفیت شریعت کے مطابق ہو، اور پانچواں اس کا وقت بھی شریعت کے طرف سے مطابقت رکھتا ہو، اور چھٹا جگہ بھی شریعت کے مطابقت رکھتا ہو۔ یہ 6 امور کو دیکھ کر ہم لوگ عمل کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ شریعت کے مطابقت رکھتا ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ میں 3 چیزوں کو ہم لوگ ڈسکس کر چکے۔ اب 3 چیز انشاءاللہ پہلا نقطہ کا، پہلا شرط کا ہم لوگ ڈسکس کریں گے، جس میں ہے کہ عمل کی کیفیت شریعت کے مطابق ہو۔ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا کیفیت جو ہے وہ شریعت کے مطابقت رکھتا ہو۔ جیسے کسی انسان کا وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے اور پہلے پیر دھوتا ہے، پھر سر کا مسح کرتا ہے، پھر ہاتھ دھوتا ہے، پھر چہرہ دھوتا ہے، اس طرح سے الٹ کر کرتا ہے، الٹا سے کرتا ہے، تو اس کا وضو کا کیفیت جو ہے، جو قرآن و سنت میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کا کیا ہے، وہ الٹ ہے۔ تو اب وہ عمل جو ہے وہ شریعت کا مطابقت نہیں رکھتا ہے، تو وہ شریعت کے حساب سے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے۔ اسی طریقہ سے اس کا دلیل دیکھیے، مسلم شریف میں 2001 نمبر ایک حدیث ہے کہ حضرت کعب بن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ عبد الرحمن بن ام حکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ جب تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو ادھر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے آیت کے حساب سے انہوں نے وضاحت کیا کہ خطبہ جو جمعہ کا ہے وہ کیا کرنا ہے، کھڑا ہو کر دینا، مگر وہ بندہ کیا کر رہا ہے، بیٹھ کے دے رہا ہے، تو یہ شریعت کے مطابقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے صحابی رسول اس کو خبیث کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا عمل کیا ہے، درست نہیں ہے۔ تو عمل میں مطابقت، یہ شریعت کے مطابقت کے لیے کیفیت کا بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقہ سے اگر کوئی انفرادی عمل ہے تو آپ اس کو اجتماعی نہیں کر سکتے۔ کوئی عمل اگر انفرادی ہے تو اس کو اجتماعی شکل میں آپ نہیں کر سکتے ہیں، اگر ایسا کریں گے تو شریعت کے کیفیت کے خلاف ہوگا۔ جیسے
फर्ज नमाज के बाद दुआ करने का सबूत मौजूद है, मगर वो इनफरादी है। इनफरादी तरीका से आप फर्ज नमाज के बाद दुआ कर सकते हैं। अगर कोई अब इज्तिमाई तौर पर अगर उसको करे तो वो शरीयत के कैफियत के क्या होगा, बरखिलाफ होगा। ठीक है, उसी तरीका से फजर का नमाज का सुन्नत जो है दो रकात, वो इनफरादी है। अगर कोई आदमी सोचे कि उसको भी हम लोग जमात से करके पढ़े तो वो भी उसके कैफियत के क्या होगा, खिलाफ होगा। तो अमल तो दुरुस्त है कि सुन्नत है सुबह का, सब कुछ दुरुस्त है, मगर प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है कि उसका कैफियत जो है वो शरीयत के मुताबिक नहीं है, तो वो भी कहने का मतलब अमल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो शरीयत के मुताबिकत में कैफियत को देखना भी जरूरी है। इसके मुताबिक एक असर है सुनन दारमी के अंदर में कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में एक हल्के के पास आकर खड़े हुए और कहा कि मैं तुम्हें क्या करते देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अबू अब्दुर्रहमान, ये कंकड़ियां हैं, हम इनके जरिए तकबीर, तहलील और तस्बीह की तादाद गिनते हैं। इब्न मसूद ने कहा कि तुम अपनी बुराई गिनो तो मैं जमानत देता हूं कि तुम्हारे नेकियों में कुछ भी कम जाया ना होगा। ऐ उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी खराबी हुई कितनी जल्दी, तुम हलाकत और बर्बादी में पड़ गए। अभी तो तुम्हारे लिए नबी के बहुत सहाबा मौजूद हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े भी मैले नहीं हुए हैं, ना आपके बर्तन टूटे हैं। कसम उस जात के जिसके हाथ में मेरी जान है, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल्लत से ज्यादा हिदायत याफ्ता मिल्लत के रास्ते पर हो। ये इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब देखिए वो लोग तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, तो ये तो साबित है, मगर वो क्या चेंजिंग किए हैं, कैफियत को चेंजिंग कर दिया। मतलब वो इज्तिमाई तौर पर बैठकर जो इनफरादी अमल है उसको इज्तिमाई अमल बनाकर कर रहे हैं। ठीक है ना, उंगलियों पर गिनने के बयान हुआ है तो कंकड़ियों पर गिन रहे हैं। ठीक है ना, तो इस बुनियाद पर साहब रसूल कह रहे हैं कि तुम सुन्नत को क्या कर रहे हैं, शरीयत के मुखालफत कर रहे हो और उनको डांटते हैं। सुनन दारमी में 210 नंबर हदीस मौजूद है। उसी तरीका से मुस्लिम शरीफ में 748 नंबर हदीस है कि मुजाहिद से रवायत है कि मैं और उर्वा बिन जबीर मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे के दीवार से टेक लगाए बैठे थे और लोग मस्जिद में चाश्त के नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। हमने उन लोगों के इस नमाज के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि ये बिदअत है। चाश्त का नमाज तो साबित है, तो वो लोग कैफियत बदल दिए हैं। क्या कैफियत बदल है कि वो लोग एक साथ जमात करके पढ़ता है, ग्रुप बना के पढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या अब चाश्त का नमाज इनफरादी है, आप अपना इनफरादी लेवल में पढ़िए, मगर वो लोग जमा होकर, ठीक है ना, एक साथ पढ़ रहे हैं। इसको अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस फॉर्मेट में नहीं था, इस कैफियत में नहीं था, यानी इनफरादी अमल था, तो तुम लोग क्या कर दिए हो, इज्तिमाई कर दिए हो। इस वजह से ये बिदअत में शुमार होगा, यानी सुन्नत के उल्ट जो होगा, खिलाफ जो होगा, वो क्या होता है, बिदअत होता है। तो ये बिदअत में शुमार इसको कर रहे हैं। एक और हदीस देखिए बुखारी शरीफ का 956 नंबर हदीस है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के दिन ईदगाह तशरीफ ले जाते तो सबसे पहले आप नमाज पढ़ते। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने खड़े होते, तमाम लोग अपनी सफों में बैठे रहते, आप उन्हें वाजो नसीहत फरमाते, अच्छी बातों का हुक्म देते, अगर जिहाद के लिए लश्कर भेजने का इरादा होता तो उसको अलग करते, किसी और बात का हुक्म देना होता तो हुक्म देते, इसके बाद शहर को वापस तशरीफ लाते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद और बकरा ईद का नमाज का कैफियत बयान कर रहे हैं कि सबसे पहले वो क्या करते थे, नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ने के बाद से खुतबा देते थे, और खुतबा भी मेंबर पर नहीं, खुतबा भी मेंबर पर नहीं, ईदगाह के अंदर में मेंबर नहीं होता था। ठीक है, तो वो खड़ा होकर खुतबा देते थे।
अबू सईद खुदरी ने बयान किया कि लोग बराबर इसी सुन्नत पर कायम रहे, यही तरीका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में और सहाबा का जमाना चल रहा है, इसी पर कायम रहे। लेकिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाना में, जब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत आया, तो मरवान जो मदीना का हाकिम था, फिर मैं उसके साथ ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज के लिए निकला। तो ये लोग हाकिम वक्त जो होता है, गवर्नर थे ये, तो ये गवर्नर होगा वही नमाज पढ़ाएगा ईद या बकरीद का, जुम्मा का। तो ये ईद उल फित्र का नमाज इनके साथ पढ़ने जा रहे हैं। बयान करते हैं कि जब हम ईदगाह पहुंचे तो वहां मैंने कसीर बिन सलत का बना हुआ एक मेंबर देखा। तो पहली बार वो देख रहे हैं कि वहां पर एक मेंबर रखा हुआ है, पहले मेंबर का रिवाज नहीं था। उसके बाद कहते हैं मरवान ने चाहा कि उस पर नमाज से पहले खुतबा देने के लिए चढ़े, इसलिए मैंने उसका दामन पकड़कर खींचा। तो नमाज से पहले खुतबा देने के लिए चढ़ना चाहा तो ये दामन पकड़ के खींचे, लेकिन वो झटक कर ऊपर चढ़ गया और नमाज से पहले खुतबा दिया। मैंने इससे कहा, वल्लाह तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बदल दिया। मरवान ने कहा, ऐ अबू सईद, अब वो जमाना गुजर गया जिसको तुम जानते हो। अबू सईद ने कहा, वल्लाह मैं जिस जमाना का जानता हूं इस जमाने से बेहतर है जो मैं नहीं जानता। मरवान ने कहा कि हमारे दौर में लोग नमाज के बाद बैठते इसलिए नहीं बैठते, इसलिए मैंने नमाज से पहले खुतबा दे दिया। तो इनका दलील भी वाज़ह हो गया। इनका दलील क्या है पहले देने का, कि पब्लिक जो है वो खुतबा सुनने के लिए बैठता नहीं, नमाज पढ़ा चला गया, तो ये सुन्नतें बदल दिए पब्लिक को सुनाने के लिए। समझ रहे हैं? तो इनका दलील कुरान और सुन्नत नहीं है। और ये भी कह रहे हैं कि अब वो जमाना गुजर गया कि जो सुन्नत के हिसाब से चला जाए, हूबहू चला जाए। तो ये बिगाड़ कब आ रहा है? अभी दुनिया के अंदर में सहाबी मौजूद है, उस वक्त से बिगाड़। अभी हम लोगों ने इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के एक रवायत देखा, जो मस्जिद के अंदर में अजकार जो है इज्तिमाई तौर पर किया जा रहा था, ठीक है ना। ये देखिए ईद का नमाज का पैटर्न बदल दिया गया। अब इस पैटर्न का डुअल कैरेक्टर आज हम लोग के जमाना में मौजूद है, कि हम लोग ईद के बाद एक खुतबा हम लोग के यहाँ होता है, मगर उससे पहले भी खुतबा होता है, उसको तकरीर कहा जाता है। अब ये खुतबा तकरीर में क्या डिफरेंस हमको तो आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो उसको तकरीर कहकर बयान किया जाता है, ठीक है ना। जबकि लोग इसका एक्सक्यूज भी देते हैं ये कि अरे उस वक्त है तो लोग कुछ समझा दिया जाए, ये कर दिया जाए। अरे आपसे ज्यादा समझने की जरूरत उस जमाने में था। उस जमाने में तो विधि उतर रहा था, कोई किसी को कुछ पता नहीं था, एक एक स्टेप लोग समझता था, ठीक है ना। अभी तो बहुत कुछ लोग समझा हुआ है। तो रसूल का सुन्नत है कि ईदगाह के अंदर में आप पहुंचिए तो इत्मीनान से पढ़िए और तकबीर कहिए। तकबीर का दलाइल मौजूद है, सब आदमी तकबीर कहेगा, ये एहतमाम नहीं है। हम लोग यहाँ बकरीद में तो थोड़ा लोग पढ़ भी लेता है, मगर निकलते वक्त यहाँ से जब घर से आप निकलेंगे तो तकबीर कहते हुए रहेंगे, और जब तक इमाम नमाज पढ़ने के लिए खड़ा ना हो मुसल्ला पर, तब तक आदमी क्या करेगा, तकबीर कहता रहेगा। इसका एहतमाम करना है, ये सुन्नत है। तो इसको दरकिनार करके एक वाजो नसीहत जो होता है, तकरीर शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद से तकरीर चलते रहता है, और उसके बाद से नमाज होती है, और नमाज के बाद फिर अपना जो खुतबा उनका है तो वो देकर वो लोग पढ़ता है। तो कुछ परसेंट वो भी तब्दीली में शुमार होगा, ठीक है ना। तो बेहतर तरीका यही है, जो सुन्नत तरीका है कि आदमी ईदगाह के अंदर में जाए तो तकबीर कहे, सब लोग तकबीर कहे। और जब टाइम हो जाए तो अब उसमें अजान भी नहीं है, ठीक है ना, उसके अंदर में ईद के दिन अजान भी नहीं है, ठीक है ना। तो कोई अजान भी शुरू ना करे, और भी वक्त होगा तो लोग सोच सकता है कर भी दे, ठीक है ना। तो सुन्नत का कैफियत पर भी बहुत नजर रखना है कि जो अमल आपका इनफरादी है उसको इनफरादी कहिए, जो अमल जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसको डायरेक्शन को मत बदलिए। मगर लोग कह देता है कि ऐसा कर लो तो क्या फर्क पड़ता है, ये हो गया तो क्या हो गया, वो हो गया तो क्या हो गया। और उम्मत के अंदर में एक इख्तलाफ का भी वजह यही है
साउद्दौला दहली रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब हुज्जतुल्लाह बालिगा के अंदर में एक इख्तलाफ को वजह ये भी बताए हैं कि फर्जी मसला लोगों ने पैदा किया और फिर उसका आंसर देना शुरू किया, तो कुछ आदमी कुछ और आंसर दे रहा है, कोई आदमी कुछ और आंसर दे रहा है, कोई जायज कर रहा है, कोई नाजायज कर रहा है। इससे भी मसाइल में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पैदा हुआ, जबकि सहाबा के दौर में ये फॉर्मेट नहीं था। सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरीका से सीख लेते थे उसी तरीका से करते थे। अब उसमें क्वेश्चन निकालना और उसमें किसी तरह का फेरेदो बदल करना वो बेहतर नहीं समझते थे, ठीक है ना। और छोटी छोटी बातों में भी तब्दील में गुस्सा होते थे। देखिए, अगर नॉर्मल देखा जाए तो एक बंदा बैठकर खुतबा दे रहा है, एक खड़ा होकर दे रहा है, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, मगर उसको भी सख्ती से ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं कि सुन्नत जब है खड़ा होकर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में कभी बैठ कर खुतबा नहीं दिए। जुम्मा का बात हो रही है, नॉर्मल आप दर्स तदरीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर भी दिए हैं, नीचे भी बैठ के दिए हैं, कुर्सी पे भी बैठ के दिए हैं, सब हदीस के अंदर मौजूद है, तो वो आप कर सकते हैं। मगर जुम्मा जो स्पेशल खुतबा जो हो रहा है उसके अंदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा खड़ा होकर खुतबा देते थे, इसलिए साहब रसूल क्या कर रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं। तो ये कैफियत का एहतमाम भी अच्छी तरीका से रखना चाहिए। उसके बाद पांचवा जो इसके अंदर में मुताबिकत रखना है वो अमल का वक्त शरीयत के मुताबिक रखना है। शरीयत के वक्त का भी अहमियत है। जैसे रमजान का महीना शुरू होने वाला है, अब आदमी कोई करे कि भाई रमजान में हम रोजा नहीं रखें, एक महीना हम लोग शव्वाल में रखते हैं, या एक महीना हम लोग सावन में रखते हैं, या एक महीना हम लोग मुहर्रम का महीना रखा जाए, हुर्मत का महीना है, या रजब का महीना है, तो इसको भी आप तब्दील नहीं कर सकते। अगर ये तब्दील करेंगे तो शरीयत का मुताबिक फिर नहीं होगा। इसलिए कि शरीयत ने रमजान रोजा का जो महीना है वो फिक्स रखा है, फर्ज रोजा का जो महीना है वो क्या रखा है, फिक्स रखा है। नफिल रोजा का ओपन है, अब जब रखिए, मगर फर्ज में इसको ये करना। उसी तरीका से अगर जोहर का नमाज जवाल से पहले अगर आप पढ़ना चाहें, ठीक है ना, तो वक्त जवाल के बाद आएगा और आप सोच रहे हैं कि हम पहले ही पढ़ लें, ठीक है ना, तो फिर आपका शरीयत का क्या होगा, मुताबिक नहीं होगा, तो वो दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है जी। उसी तरीका से ईद के लिए नमाज जो हो रहा है उसके अंदर में अजान और अजान इकामत नहीं है। उसी तरीका से आपका ये क्या बोलता हूँ, जनाजे की नमाज है, तो जनाजे की नमाज के अंदर में भी रुकू सिजदा नहीं है, तो आप लोग कहेंगे भाई चलिए हम लोग बढ़ा लेते हैं, तो आप नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए तो शरीयत का खिलाफ हो जाएगा, उसके मुताबिक नहीं होगा। ठीक है। अब इसके मुतालिक एक हदीस है बुखारी शरीफ में 5500 के जुंदुब बिन सुफियान बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मर्तबा कुर्बानी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार कुर्बानी की। कुछ लोगों ने ईद के नमाज से पहले ही कुर्बानी कर ली थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर वापस तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोगों ने अपनी कुर्बानियां नमाज से पहले ही जमा कर लिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस शख्स ने नमाज से पहले कुर्बानी जमा कर लिया हो उसे चाहिए कि उसकी जगह दूसरी जगह करे, और जिसने नमाज पढ़ने से पहले जमा नहीं किया हो उसे चाहिए कि अल्लाह के नाम पर जमा करे। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में भी एक इवेंट आया कि बकरीद का जो कुर्बानी है वो करना है, वो नमाज के बाद करना है। अब इन लोगों ने क्या कर दिया कि नमाज से पहले कर दिया, तो वक्त का मुताबिक का ध्यान नहीं रखा, जबकि अल्लाह के नाम पर ही किया जा रहा है, नियत भी आपका सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ ओके है, ठीक है ना। सिर्फ गलती है क्या हो रहा है कि नमाज से बाद में करना है, वो लोग क्या कर दिए, पहले कर दिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो कुर्बानी अब हुआ ही नहीं, अब सब लोग उसके बदला में दूसरा कुर्बानी करो, वो कुर्बानी का हक अदा नहीं हुआ, यानी वो कुर्बानी का अमल साबित नहीं हुआ, अब वो अमले साले के अंदर में शुमार नहीं होगा। इसीलिए अमल करने में वक्त का मुताबिक का ध्यान देना, कि वक्त जो जिस तरह से डिसाइडेड हो शरीयत के मुताबिक उसको पूरी ध्यान के साथ उस पर अमल करना। उसके बाद से छठा है कि इबादत करने का जगह शरीयत के मुताबिक हो, यानी जो शरीयत ने किसी इबादत या अमल के लिए अगर जगह डिसाइड कर दिया है तो उसमें भी आप रद्द बदल और चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे इत्काफ के लिए
शरीयत में जो जगह डिसाइड किया है वो कहां डिसाइड किया है? मस्जिद। कि आप मस्जिद के अंदर में आपको इत्तिकाफ करना है। रमजान आ रहा है, लोग इत्तिकाफ करता है, तो मस्जिद के अंदर में आपको इत्तिकाफ करना है, ये शरीयत का जैसे डिसाइडेड है। अगर आप चाहे तो वो सब काम इत्तिकाफ में जो होता है वो हम करेंगे, मगर घर पर करेंगे, तो वो आपका अमल शरीयत के मुताबिक नहीं रखेगा, वो साले अमल में नहीं आएगा। इसलिए कि शरीयत ने उसका वक्त एक मुकर्रर कर रखा है। उसी तरीका से कि काबा का, बैतुल्लाह का तवाफ है, तो जगह डिसाइडेड है कि आपको अगर तवाफ का इबादत करना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? मक्का जाना पड़ेगा और काबा का तवाफ करेंगे। अब उसको छोड़कर अगर दूसरा जगह आप तवाफ करने लगे, कोई अपना एक जगह बना ले और अल्लाह ही के लिए अगर उसको आप तवाफ करेंगे तो वो एक्सेप्टेड होगा? नहीं होगा। इसलिए कि उसके लिए भी जगह क्या है? इस्लाम के अंदर में डिसाइडेड है। तो जो जगह डिसाइडेड है उसके बरखिलाफ आप नहीं कर सकते। उसी तरीका से बकरीद में अरफा के मैदान में जो ठहरने का वक्त है, आप अरफा में नहीं ठहर कर मुज़दलिफा में जाके ठहर जाएं तो आपका वो अमल कबूल नहीं होगा, वो अमल साले में शुमार नहीं होगा। तो ये 6 आपका नुक्ता था जिसको आपको ध्यान देकर इबादत करना है, चेक करना है कि इसमें शरीयत में क्या है। पहला आपको देखना है कि शरीयत का हुक्म मौजूद है कि नहीं, अल्लाह और रसूल का हुक्म मौजूद है कि नहीं, वो चेक करना है। अगर हुक्म नहीं है तो खारिज, ठीक है जी। उसके बाद से अगर कुरान और हदीस के अंदर में अमल मिलता है तो अब उसका टाइप देखना है कि ये किसके लिए, हमारे लिए है कि नहीं, कि रसूल के लिए खास है। तो उसका नौइयत भी चेक करना है, उसका टाइप भी चेक करना है और उसके बाद उस पर अमल करेंगे तो वो अमल आपके साले अमल के अंदर में शुमार होगा। उसी तरीका से तीसरा चीज है कि मकदार है, जो शरीयत ने आपका मकदार डिसाइड किया है कि सुबह में 2 रकात फर्ज पढ़ना है आपको, ये मकदार शरीयत के तरफ डिसाइडेड है। तो आप 4 नहीं कर सकते, उसमें आप बढ़ा नहीं सकते हैं। अजान का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म हो रहा है तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बढ़ा सकते हैं। समझ में आई बात? तो मकदार जितना जहां पर है, आपको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार पढ़ना है तो आप 35 बार 36 बार नहीं कर सकते हैं। तो जहां पर शरीयत में मकदार का डिसाइडेड हो तो उसको भी ध्यान देना है। अगर उससे भी आप हट कर करेंगे तो वो आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। उसी तरीका से आपका ये कैफियत जो है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो कैफियत में आपका बयान किया गया है उसी कैफियत के अंदर में उसको अमल करना है। वजू करने का कैफियत आपका हाथ से शुरू होकर मुंह से होकर ऐसे जाना है, सब लोग जानते हैं, उसी कैफियत में देखना है। उसका उलट पुलट कर कर आप करेंगे तो वो कैफियत आपको एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो साले अमल के अंदर में शुमार नहीं होगा। उसी तरीका से वक्त का मुताबिक देखना है कि कौन वक्त में कौन इबादत का हुक्म हुआ है, उसी के हिसाब से करना है। वक्त की भी तब्दीली नहीं करेंगे अगर शरीयत के अंदर में डिसाइडेड हो तो, ठीक है जी। उसी तरीका से इबादत करने का जगह जो फिक्स हो गया है, जो अल्लाह ताला ने जगह डिसाइड कर दिया है, तो उसको उसी जगह के मुताबिक के हिसाब से अमल करेंगे तो जाकर वो साले अमल होगा। तो ये अमल शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, शरीयत से साबित होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने 6 अहम बिंदु पर डिस्कस किया और ये सारे 6 बिंदु पर गौर करके हमको अमल करेंगे तो वो अमल हमारा एक्सेप्टेड होगा। अगर इसके बरखिलाफ आप करेंगे तो वो सारा अमल बिदअत के अंदर में शुमार होगा, रिजेक्टेड होगा, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस अम्र पर मेरा हुक्म नहीं वो काम क्या है, मरदूद है, वो रिजेक्टेड, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाए। क्लियर है? तो अमले साले होने के लिए पहला शर्त जो है हम लोगों ने डिटेल कुरान और सुन्नत के रोशनी में वजाहत के साथ देख ली है। दूसरा अब आते हैं, दूसरा जो शर्त है वो ये है कि वो अमल खालिस अल्लाह के लिए। अब आपका मान लीजिए अमल जो है वो शरीयत के मुताबिक आपने देख लिया कि जैसे नमाज है तो नमाज शरीयत के मुताबिक आपका है कि नमाज पढ़ना है, सुन्नत के मुताबिक आप पढ़ रहे हैं, सब कुछ दुरुस्त है, मगर वो नमाज खालिस अल्लाह के लिए पढ़ना है, उसमें रत्ती बराबर का मिलावट नहीं होना चाहिए। उसी तरीका से किसी भी इबादत के अंदर में जितनी भी इबादत करेंगे वो किसके लिए करेंगे, खालिस अल्लाह के लिए करना है, ठीक है ना। इसका दलील देखिए सूरह जुमर के अंदर में
आयत नंबर 11 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि आप कह दीजिए बेशक मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह के लिए बंदगी को खालिस करते हुए उसकी इबादत करूं, यानी अल्लाह के लिए खालिस करके इबादत करो। सूरह जुमर के अंदर में आयत नंबर 14 पर है कि कह दीजिए मैं अल्लाह के लिए अपने बंदगी को खालिस करते हुए उसकी इबादत करता हूं। तो खालिस अल्लाह के लिए आपको इबादत करना है, उसमें किसी तरह का रियाकारी वगैरह शुमार नहीं करना है। उसी तरीका से एक और है आयत के अंदर में कि कह दीजिए बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो जितनी तरह की इबादतें हैं वो सब क्या है, अल्लाह के लिए है। इसीलिए हम लोग तशाहुद के अंदर में जब बैठते हैं तो तहियात पढ़ते हैं, उसमें पता है ना अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु, तमाम तरह का कौली, बदनी और माली इबादतें, चाहे वो कौल के जरिए, जबान के जरिए, चाहे वो अमल के जरिए, चाहे वो माल के जरिए, जितनी भी इबादतें करते हैं, जितनी भी अमल करते हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं। तो हम लोग नमाज में भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जो अमल होगा हमारा वो क्या होगा, वो खालिस अल्लाह के लिए होगा। ये दूसरा शर्त है। और तीसरा शर्त है कि वो अमल जो है ईमान के हालत में किया गया हो। जो अमल कर रहे हैं वो ईमान के हालत में किया गया हो। अब ये शर्त आकर ऐसा वजाहत कर रहा है कि हर आदमी को हमेशा सतर्क रहना है कि हमसे शिर्क ना हो। इसलिए कि ईमान का खत्म हो जाना उसके लिए क्या है, शिर्क है, उसके लिए क्या है, कुफ्र है। तो शिर्क एंड कुफ्र जो सबसे संगीन गुनाह है, इससे पूरा बचने की कोशिश करना है। अगर ऐसा हो जाए और आप इबादत करते रहें तो आपका इबादत वो साले में शुमार नहीं होगा, वो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए आदमी को शिर्क के मुतालिक अच्छा इल्म हासिल करना चाहिए और हमेशा सतर्क होना चाहिए कि हमारा ईमान से हम बाहर नहीं निकले, ईमान का हालत में मौजूद हो। अब इसके लिए दलील देखिए, यह है सूरह 16 है ना, आयत नंबर 97 में, कि जिसने नेक अमल किए, मर्द हो या औरत, जो लोग हो जिसने नेक अमल किए, मर्द हो या औरत, जबकि वो मोमिन हो, तो हम जरूर उसे पाकीजा जिंदगी बसर कराएंगे और हम उन्हें जरूर उनका अजर व सवाब उन बेहतरीन अमाल के बदले में देंगे जो वो करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ मर्द औरत सबके लिए क्या शर्त लगाया, जो मोमिन होना शर्त है। अगर आप मोमिन है तभी आपका अमल जो है वो कबूल होने वाला है। दूसरा जगह सूरह नूर के अंदर में आयत नंबर 39 में है, और जिन लोगों ने कुफ्र किया और उनके अमाल चटियल मैदान में रेत के तरह है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जाम्पल के साथ बयान कर रहा है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, यानी आपने कुफ्र किया यानी ईमान से हट गए, उसके बाद आपका अमाल का हैसियत क्या है, वो चटियल मैदान में रेत की तरह है। प्यासा उस रेत को पानी समझता है, हत्ता कि जब उसके पास पहुंचता है तो उससे वहां कुछ नहीं पाता है। मरीचिका जो होता है, जो स्कूलों के अंदर में पढ़ते हैं, जो दूर रहता है धूप में, रेत में, तो उसको रेत पड़ता है ना तो वो चमकता है, तो दूर से आपको दिखाई देगा कि पानी है, ठीक है, मगर जब वहां पहुंचेंगे तो वहां पानी कुछ नहीं रहेगा। तो उसी तरीका से यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान फरमा रहा है कि अगर कोई आदमी ईमान से खारिज हो चुका है, शिर्क और कुफ्र की वजह से ईमान से हट चुका है, अब वो अमल कर रहा है तो उसका अमल उसी तरह से है, उसको तो लगेगा कि मैंने अमल किया है, ठीक है ना, मगर वो अमल अल्लाह के यहाँ क्या है, वो जमा नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है, वो उस रेत की तरह है, ठीक है ना। सूरह इब्राहिम के अंदर में आयत नंबर 18 के अंदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ्र किया उनके अमाल की मिसाल राख सी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फिर अल्लाह ताला एग्जाम्पल देके राख, ठीक है, जिस पर आधी के दिन की हवा चली, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उस पर कोई कुदरत नहीं रखेंगे, यही परले दर्जे की गुमराही है। यानी आधे जब चलेगा तो वो क्या होगा, राख उड़ जाएगा, कोई काम आपको आने वाला नहीं है। तो ये रहा कि अमल ईमान के हालत में किया गया होना चाहिए। तो कोई भी अमल आपके साले हो जाए, अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, अल्लाह के यहाँ मोतबर हो जाए और वो आपका जन्नत का जाने का बाइस हो जाए, उसके लिए 3 शराइत डिस्कस किया गया। पहला शर्त जो था कि वो शरीयत के मुताबिकत रखता हो। शरीयत के मुताबिकत के लिए 6 कैटेगरी को डिफाइन करके बताया गया कुरान और सुन्नत की रोशनी में। दूसरा, अल्लाह खालिस के लिए करेंगे, और तीसरा जो हम लोग करेंगे
वो क्या करेंगे कि ईमान का हालत में करेंगे, यानी शिर्क से बचेंगे और कुफ्र से बचेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा और हम कामयाब होंगे। तो ये रहा अमल साले के मुतालिक। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कोई भी इंशाअल्लाह अमल करेंगे। उसके बाद से एक लास्ट ये टॉपिक जो हम लोग चल रहा है बहुत दिनों से, उसका लास्ट टॉपिक पर हम लोग आ रहे हैं, वो ये है कि इख्तलाफ में हक वाला गिरोह कौन है। जो आज दुनिया के अंदर में इख्तलाफ है, इसके अंदर में हक वाला गिरोह कौन है, इसका कुरान और सुन्नत के अंदर में क्या वजाहत किया गया है। तो इसके लिए हदीस सुनिए, सुनन तिरमिज़ी के अंदर में हदीस है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ये कौन सी फिरका होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर मैं हूं और मेरा सहाबी है। तो इस हदीस के अंदर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिरका जो गिरोह है, जो टूटा हुआ लोग डिफरेंट गिरोह में बट गए हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि बनी इसराइल में भी घटना हुआ है और मेरी उम्मत में भी ये घटना होने वाला है, और उसमें सारा फिरका जो है जहन्नम में जाएगा, एक फिरका हक पर होगा। उसके मुतालिक सहाबी पूछे, वो हक वाला कौन है? बातिल नहीं, हक वाला कौन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका वजाहत कर दिया, जिस पर आज मैं हूं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज पर थे और सहाबा जिस चीज पर थे, दोनों शर्त रखा गया। तो जिन गिरोह के अंदर में या जिन लोगों के अंदर में ये सिफत पाया जाएगा, वही लोग हक पर है। अब हम लोग आइए देखिए कि सहाबा किस चीज पर थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज पर थे, फिर हम लोग अपना मुआयना कर सकते हैं कि हम किस चीज पर हैं, तो हम उस गिरोह के अंदर में शामिल हो जाएंगे। तो हदीस है कि पहला हम लोग देखते हैं, कुरान का आयत देखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो किस चीज पर थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, बस जो वही आपके तरह की गई है उसे मजबूती से थामे रहें, बेशक आप राहे रास्त पर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर बयान कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपके तरफ जो वही किया जा रहा है उसको मजबूती से पकड़िए, वही राह रास्ता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज पर थे? वही पर थे। और फिर दूसरे आयत के अंदर में बयान किया जा रहा है, ये सूरह नजम के अंदर में, और न वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं, वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पर थे? वही पर थे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन नाजिल किया, उस दीन पर, नाजिल शुदा आसमान में बना हुआ दीन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उसी पर चले। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वही आया, वो दो शक्लों में हमारे पास हिफाजत है, एक कुरान के शक्ल में और एक हदीस के शक्ल में। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग पिछले दर्सों के अंदर में किया है। मुस्तदरक हाकिम के अंदर में 319 नंबर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस व्यू का वजाहत किया है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज छोड़कर जा रहा हूं, अगर उस पर अमल पैरा होगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, वो किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, ये दोनों क़यामत तक एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुरान और हदीस दोनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिफाजत किया है और क़यामत तक ये हिफाजत फॉर्मेट में रहेगा, और ये अल्लाह का वही कुरान और सुन्नत में हिफाजत है। इसीलिए हर इंसान को किधर रुजू करना है? तो कुरान और हदीस के तरफ रुजू करना है, और वहीं पर आपका सही दीन मिलेगा। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज पर थे वजाहत किया गया। फिर उसके बाद से सहाबा को क्यों नमूना बनाया गया, सहाबा का नमूना बनाने का क्या रीजन था, तो इसके अंदर में सूरह बकरा के अंदर में आयत नंबर 137 में बयान किया गया है, बस मोमिनों की तो बात ही ये है कि जब वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि उनके दरमियान फैसला करें, तो कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो सहाबा की सिफत बयान किया जा रहा है कि जब उनसे कहा जाता है कि भाई आइए अल्लाह और रसूल के हिसाब से फैसला कर दिया जाए, तो कहते हैं कि मैंने सुना और माना, कोई चू चरा नहीं। तो ये तर्ज अमल सहाबा का था, तो इसीलिए उनको भी नमूना बनाया गया कि ये तर्ज अमल आपको भी रखना है। सिर्फ कुरान हदीस
से काम नहीं चलेगा, सहाबा का तर्ज अमल भी चाहिए, सहाबा का जो तरीका था चलने का वो भी चाहिए। इसीलिए सूरह बकरा के अंदर में आयत नंबर 137 या सूरह नूर का आयत नंबर था 51, अब सूरह बकरा का 137 नंबर आयत में है कि अगर वो तुम जैसा ईमान लाए तो हिदायत पाए, अगर मुंह मोड़े तो वो सरी इख्तलाफ हो। तो यहाँ पर भी सहाबा कहा गया कि अगर सहाबा की तरफ आप ईमान लाएंगे तो क्या रहेगा, आप हिदायत पर रहेंगे, अगर उनसे मुंह मोड़ेंगे तो सरी इख्तलाफ होगा। और ये इख्तलाफ का रीजन भी सहाबा से मुंह मोड़ने की वजह से है, ठीक है ना। आप डिफरेंट फिरका का भी फौज यही है। उसी तरीका से इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का रवायत जो है मुस्लिम शरीफ का, इससे पहले भी बयान किया गया था कि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने भी नबी दुनिया के अंदर में भेजे वो सब लोगों के साथ सहाबा या हवारी लगाए। उनका तर्जुमा ये होता था कि उनका रसूल जो बयान करते थे उसके ऊपर वो अमल करते थे, जिस चीज से रोकते थे वो रुक जाते थे, अपने से कुछ नहीं निकालते थे। और बाद में जो लोग आते थे जो निकालते थे, उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी देखा कि नमाज, ईद के नमाज के अंदर में खुतबा से पहले बदल दिए, खुतबा खड़े होकर देना है तो बैठ के देने लगे, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग पीछे देखे हैं। तो इसलिए हमको कुरान को और हदीस को पकड़ना है, मगर वो सहाबा के हिसाब से पकड़ना है, यानी सहाबा का जो तर्ज अमल था उसके हिसाब से जो पकड़ेगा वही हक पर है और वही हक वाला गुरु है। इब्न माजा के अंदर में हदीस नंबर 10 में बयान है कि हजरत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर रहेगी और उसके मदद की जाती रहेगी, उनकी मुखालफत करने वाले उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे हत्ता कि अल्लाह का हुक्म यानी क़यामत आ जाए। तो क़यामत तक एक गुरोह हमेशा हक पर रहेगा जो कुरान और सुन्नत और सहाबा के तर्ज अमल पर चलता होगा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौर से चल रहा है और क़यामत तक वो चलते रहेगा, वो गुरोह है। फिर तिरमिजी शरीफ के अंदर में 2192 के अंदर में बयान है कि रवायत है कुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब बिगड़ जाएगा शाम के लोग फिर तुम में खैर नहीं। शाम जो सीरिया है, अब ये सीरिया का हालत देख लीजिए, वो सबसे फितना का दौर होगा। उसका वजाहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में बयान किया है कि जब बिगड़ जाएंगे शाम के लोग फिर खैर नहीं तुम में, हमेशा रहेगा एक फिरका मेरी उम्मत से मदद किया होगा, न जर करेगा जो उनकी मदद छोड़ दे, यहां तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। कहा मोहम्मद बिन इस्माइल ने, ये तिरमिजी शरीफ रवायत कर रहे हैं और तिरमिजी शरीफ बयान कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन इस्माइल यानी बुखारी ने हमसे कहा और उनसे कहा अली बिन मदनी ने यानी इमाम बुखारी के उस्ताद ने कि वो फिरका जो हमेशा क़यामत तक हक पर रहेगा वो असहाबुल हदीस है, यानी अहलुल हदीस है, यानी कुरान और सुन्नत और सहाबा के तर्जुमल पर अंडरस्टैंडिंग का मजहब रखने वाला जो रहेगा जब रहेगा वही हक पर होगा और वही गुमराही से बचा होगा। तो ये मुख्तसर इस पर हम लोगों ने गुफ्तगू किया। इंशाअल्लाह अभी रमजान में एक महीना दर्स बंद रहेगा और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, रोजा सब लोग रखें, नफिल नमाज का एहतमाम करें, ठीक है, सदका करें, ठीक है ना, कुरान की तिलावत करें, कुरान को समझ के पढ़ने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह इस पर हम लोग इस महीना में बरकत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। इंशाअल्लाह फिर हम लोग का दर्स का प्रोग्राम रमजान के बाद इंशाअल्लाह शुरू होगा, ठीक है ना। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।